Dear student, let us start to learn about the solutions. We are discussing about that 5 mole Na2CO3 and 5 molar Na2CO3. The difference between these two is this is a concentration term. This is concentration term. Always a concentration terms is given by gram per ml, microgram per ml, or mole per liter. Likewise, these or mole per kilogram. Like this we are giving this concentrations. This is values, this is countable term, this is in concentrations term. Let us see that all these things we have discussed about that. So concentration is the amount of solute dissolved in a unit volume of the solution or unit weight of the solution. It is also discussed here that a weight of the solvent or a volume of the solutions. Okay, let us say here the concentrations are divided into two terms. I have classified the concentration in the two way. One is based on the volume and another one is based on the mass. These two are the terminology we have, mass and volume. Okay, so in case of that also we can learn that. So in case of volume is always changed by the temperature and mass never changed by the temperature. So the concentration term which are given in a group number 1, they are depend on volume and temperature dependent, and the concentration is given in the group number 2, that is mass related and temperature independent. So it is molarity, normality, weight by volume and volume by volume. Though the confusion is there, sir, यहाँ पे भी W तो दिया हुआ है, so why it is not a mass? So always we have to take here a V. This is volume. In this case we take is it? So here temperature independency, molality, mole fractions, percentage weight by weight और parts per millions. तो इसमें हम ये रखे चलेंगे कि लिटी में जहां पे L आता है ना, वहां पे L में लीटर नहीं आता, तो ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या होता है मोलारिटी एंड मोलालिटी. तो हम यहाँ पे कंक्लूडेड रिमार्क्स लगते हैं कि लिटी में लीटर नहीं आता. फिर से लिटी में लीटर नहीं आता. Then mole fraction, weight by weight in parts per volume. Let us see one by one. First is molality. See, molarity is always a mole. So the number of moles of solute dissolved in 1 liter solutions, इसको molarity बोलते हैं. देखो मेरे पास एक ऐसा कोई बीकर है. In this beaker I filled 1000 ml of water, और इसमें मैंने 3 तरीके का सॉल्यूशंस बनाए हैं. The first is 1 mole डाला, second 2 mole, the third one is 3 mole. If I will add 1 mole तो ये हो जाएगा 1 molar. I add 2 mole तो ये हो जाएगा 2 molar. I add 3 mole तो ये हो जाएगा 3 molar. Let us see here. So it is denoted by M, but it's very simple. This equations and all these things. So it's very simple. It is written number of moles of solute dissolved by a volume of the solutions, mole per liter, mole per deciliter. Dear student, decimeter cube means 1 liter. 1 decimeter cube means 1 liter, right? Let us go ahead. The solution is prepared by dissolving the W gram of the solute. The molecular weight is VmL of solutions. अबे बात ये है कि हम जो भी केमिकल परचेज करते हैं, और we purchase any chemical, we purchase chemical always in the form of mass, not by the mole. We purchase in the form of mass. If we purchase it in the form of mass, then our role is to convert it into the mole. And we know very well the formula to convert a mass into the mole. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Always we are not taking 1 mole, 2 mole, 3 mole, 4 mole, 5 mole. Hypothetically we have taken a W gram. So W gram का हम मोल में कन्वर्ट कर देंगे. And always we are not taking 1000 ml. Sometimes we have to take 100 ml, 200 ml, 250 ml, 350 ml. So hypothetically, or
to be considered, we have taken here a VML. Let us see what is this equations. Excellent equation is W divided by molecular weights. Ultimately बच्चों ये क्या हो गया, ये मोल ही हो गया, 1000 ml per VML. Okay, so to convert into the ml they have taken it VML. So ये हमारा एक master blaster equation है. What is that? We have to find this master blaster equations. So m is equal to, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि भाई ये मोल हो गया, तो इस equations को हम थोड़ा बहुत ऐसा भी बना सकते हैं, it's converted to m and we are getting a V mole. And dear student, to calculate the mole we have three ways. Already that three ways we have discussed. One is based on the mass, another based on volume, and a third one based on number of entities. तो ये इसमें से कुछ भी दिया होता है, we can find the mole. If we find the moles, then very easily we can find the molarity. तो ये बात हो गई. चलते हैं फिर millimoles. तो ये क्या हो जाता है कि what we have these equations, we have equation m is equal to W divided by 1000 ml divided by molecular weight into VML. तो बच्चों यानी उसने क्या कर दिया, m into v. This is very important for us because so many times we use mv. So m into v is a millimole. So millimole is equal to molarity and v is equal to total volume. Is it? So in such way we are getting the molality and molarity. This is not lity, but this is riti. Molarity into total volume of the solutions, right? Let us see this problem. देखो अभी प्रॉब्लम कैसे हो गए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पिक्चर उसका बता दूं. एक आपको W ग्राम कुछ सब्सटेंस दिया हुआ है, ये W ग्राम सब्सटेंस से आप कुछ सॉल्यूशंस बना रहे हो. तो ये जो कुछ सॉल्यूशंस बनेगा उसकी भी कुछ मोलारिटी होगी. ओके, आप यहां से काम नहीं कर रहे हो, यू स्टार्ट फ्रॉम द हियर. तो इसमें से कुछ आप डाइल्यूट करके उसका नया कुछ सॉल्यूशंस बना रहे हो, तो इसमें से कुछ उसकी नई मोलारिटी होगी. ठीक है. द सेकेंड एंड थर्ड केसेस, आप इसमें से कुछ दूसरा सॉल्यूशंस भी बना रहे हो. इसमें से तो बहुत सारे सॉल्यूशंस बन पाते हैं. सो वी कैन मेक सो मैनी. सो दिस इज आवर M2. So in this case also we can say that डिनोमिनेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है, क्या डिनोमिनेटर जो नहीं फटाफट मार जरूर. So in this case this M2 is a different solutions. So sometime people are making the role to prepare the solutions by mixing these two. तो ये कुछ नया बन जाएगा M4. तो बच्चों इतने टाइप्स का कुछ सॉल्यूशंस होगा. और अगर आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ से मैंने बनाया ये सॉल्यूशंस, उसको मिक्सिंग नहीं करना, पर ये शायद वेट बाय वेट में है, ये वेट बाय वॉल्यूम में है, तो बताओ भाई इसमें कितनी मोलारिटी होगी. तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होगी. ठीक है. तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली यही इक्वेशन यूज कर देंगे कि m इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय m 1000 डिवाइडेड बाय VML. वेरी सिंपल इक्वेशंस. यहाँ पे हम ये इक्वेशन यूज करेंगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. यहाँ पे हम ये इक्वेशन यूज करेंगे कि m4 इज इक्वल टू उसको m1 v1 इज इक्वल टू, इसको चलो m बोल देते हैं ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो थोड़ा. ठीक है. mv. ठीक है. तो m4 इज इक्वल टू
mv प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v टोटल। ठीक है, तो इसमें से m4 हो जाएगा। यहाँ के कोई सारे बहुत इक्वेशंस हैं, दैट आल्सो वी विल फाइंड, बट अल्टीमेटली मोलारिटी में इतनी बात है। ठीक है, then let's move. 56 ग्राम ऑफ द KOH is नीचे इनो क्या denominator. Okay, fine. So here we have this this equation is based on this one. इसके बेसिस पे ये पहला इक्वेशन है. So let us see here. So how to calculate? It's very simple. 56 gram of the KOH is dissolved in the 1000 ml of the water. Find the molarity. So what standard equations? M is equal to W. Denominator में आएगा molecular weight into 1000 ml और denominator में आएगा VML. So here in case of denominator we have VML, so it is depend on the volume. Now the volume is temperature dependent, so it may change. So it's very simple. Let us move ahead. So M is equal to 56 ग्राम, उसका मोलेकुलर वेट भी कुछ 56 ग्राम ही है, 1000 ml डिवाइडेड बाय 1000 ml, तो करीबन ये 1 मोलर हो जाएगा. इट्स राइट. लेट अस गो अहेड. Calculate the molarity of KOH in the solutions prepared by the. It's a very same example, only change in a 250 ml. ये क्या बताता है कि भाई आप कुछ KOH एक केमिकल्स है, वो सॉल्यूट है, उसको हम डिसॉल्व करते हैं कितने में 5.6 ग्राम. We dissolve it into the 250 ml, and after dissolving the 250 ml, we are getting some solutions. Now, what is the molarity of these solutions? They are asking like this. So again, we have to use the same equations. Whatever we have, think about it. Okay, चलते हैं तो फिर वही equations का use करके हम कुछ निकाल देते हैं. So here M is equal to W divided by molecular weight into 1000 divided by VML. Let us see. So what is the mass of the substance? That is 5.6, 56 into 1000 ml divided by, we have again 250 ml. So let us see here. क्या हो जाएगा भाई? ये 56, ये 56, ये नीचे 10 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है. So into 1000 divided by 250 ml. So in this way we are cancel out. Simplification how to do here. So 10 cancel out. Again this is going to be cancel out. Again, okay, these are already cancelled out. So what we are getting? We are getting 2 by 5. So that is one thing, but we multiply with 2, so we are getting 4 by 10. 4 by 10 means 0.4. This is concentration is 0.4 molar. चलो बच्चों, ये भी आपको पता चल ही गया होगा. Let us go ahead. What is the next? Equations for dilutions. अभी ये बहुत अच्छी बात है. देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इसको हम ये जो इक्वेशंस हैं उसको हम यहाँ से मुड़ने वाले हैं. कैसे? तो देख लो, यहाँ से अभी आए थे, अभी नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस. ठीक है, तो क्या होता था, इसमें कुछ m मोलर का सॉल्यूशंस मिला था, उसकी वॉल्यूम भी कुछ v हमने लिया था. सो वी डाइल्यूटेड अप टू v1 ml. तो लेट अस सी हियर. देखो तो m2 द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये कुछ है. चलो मैं आपको एक स्टोरी थोड़ी सी सुना देता हूं. तो इसमें ये स्टोरी कैसी है कि देखो, हमने पहले यहाँ से ये कुछ चाय बनाना सीख लिया कि यहाँ से कुछ सॉल्यूशंस है. ओके, उसकी मोलारिटी M1V1 है, जैसा कुछ है, MV है, M1V1 है, जो भी आप ले सकते हो. हमारे घर पे जो भी मेहमान आए थे, उस मेहमान को हमने चाय दे दी, और उसके जाने के बाद दूसरे मेहमान भी आए. दूसरे मेहमान आए हैं, उस कोरोना की वजह से हम कुछ जुगाड़ नहीं कर पाते मिल्क का, तो हम क्या करेंगे? ये जो हमको पता है कि हमारे पास थोड़ी बहुत चाय इसमें पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? सबको ये हम पिरोस नहीं पाते, तो सबको हम पिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसका वॉल्यूम बढ़ाना है. इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम, जो चाय की डार्कनेस है ना, वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी मोलारिटी कम ही होगी. ज्यादा तो हम कर नहीं पाते क्योंकि मोलारिटी कम ही होगी. सो इन दैट केस व्हाट हैपन टू अस इज
देखो ये थोड़ा बहुत सा हेजीनेस जैसा हो गया अभी। सो हियर दिस वन इज, देखो यहाँ से V1 क्या है कि ये हमारी पुरानी चाय है, ये हमारे डाइल्यूशन के बाद नई मिलती चाय है। तो इसमें से देखो कि हमारे पास 100 ml चाय है और हमको चाहिए 400 ml। हमारे पास इतने ज्यादा मेहमान हमारे घर पे पहुंच गए, तो इसमें से क्या करेंगे, हम 100 ml चाय लेंगे और दूसरा 300 ml वाटर डाल देंगे, तो टोटल हो गया 400 ml। तो ये जो बच्चों खास याद रखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो V2 है ना बच्चों, दैट इज अ 400 ml। आप 300 डाल रहे हो तो वो 300 नहीं लेने का, आप यहां से 100 ले रहे हो तो वो 100 नहीं लेने का, बट आप उसको टोटल कितना कर रहे हो, 400 ml। सो व्हाट हैपेंड टू अस इज वी आर गेटिंग अ टोटल वॉल्यूम। अच्छा चलते हैं फिर problem. We have one more solutions of the substance to NaOH and we want to prepare 0.2 more solutions from it। देखो ये सब ये क्वेश्चन उसी जैसा ही है। तो कैसा है कि हमारे पास एक मोलर का सॉल्यूशंस है, we have one molar solutions। तो ये एक मोलर के सॉल्यूशंस में से हमें क्या करना है बच्चों, तो देखो ये थोड़ा बहुत डायग्राम बनाने का एग्जांपल में तो बहुत ही सुकून होगा और बहुत ही मजा आ जाएगी। तो इसमें हमने 1 मोलर सॉल्यूशंस है, इसमें से हमें बनाना कुछ है कितना भाई, 0.2 मोलर। इट्स वेरी सिंपल कि बच्चों इसमें क्या करना होगा, इसमें डाइल्यूशन ही करना होगा। इट्स वेरी 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 क्लियर। अभी कुछ भी 0.2 मोलर कितना चाय चाहिए, कितना सॉल्यूशन चाहिए वो नहीं दिया, then we write 1000 ml। it's very simple। so in this case आपको V1 कितना लेना होगा ये बताने की बात यहाँ पे आई है। We have 1 molar solutions of the substance NaOH and we want to prepare a 0.2 molar solution। So इसमें हम बता देंगे कि M1 V1 is equal to M2 V2। चलते हैं, M1 कितना है 1 मोलर, V1 हमें ढूंढना है भाई, is equal to M2 कितना है 0.2 मोलर, इसका वॉल्यूम कितना है 1000 ml। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इसका मतलब ऐसा हुआ कि 200 ml। तो ये ऐसा बता रहा है कि जो हमारी पुरानी चाय है इसमें से हम 200 ml लेंगे और उसको टोटल 1000 ml करने के लिए हम इसमें 800 ml वाटर डालेंगे। सो 200 ml हमारा जो पुरानी चाय है इसमें से लेके उसको 800 ml वाटर डाल के उसको मेकअप करेंगे। When we make up it, we are getting some solutions, that is 200 ml of 1 molar is diluted to 1000 ml। और हम ऐसा भी बता सकते हैं कि add 800 ml water। आई होप बच्चों ये पता चल ही गया होगा। लेट अस सी अहेड मोलारिटी ऑफ बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशंस। देखो एक ये बात हो गई, हम अभी एक केस नंबर 1 था कि हमारे घर पे मेहमान आए थे, हमने उसको चाय दे दी, उसके जाने के बाद हमारे नए मेहमान आ गए। अभी ये नई बात है कि हमारे घर पे भी मेहमान गेस्ट आए थे, पड़ोस वालों में भी गेस्ट आए थे, घर के जो गेस्ट थे वो भी चले गए, पड़ोस वालों के गेस्ट थे वो भी चले गए, पर हमारे घर पे फिर से नए गेस्ट आए। पर हमको पता था कि पास में भी गेस्ट आए थे तो उन्होंने भी चाय बनाई थी, कोरोना की वजह से हम चाय का जुगाड़ नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे, पड़ोस से चाय लेके ये दोनों चाय को मिक्स करके नई कुछ चाय बनाएंगे। ये चाय मीन्स हमारी हो जाएगी M3। तो बच्चों उसका कुछ इक्वेशन ऐसा हो जाएगा कि M3 is equal to M1 V1 plus M2 V2 divided by V total। What do you mean by V total? V total is V1 plus V2। ठीक हुआ, चलते हैं तो फिर आगे। तो ये बात मैं यहां से आपको बता रहा हूं, अभी ये जो बात बता रहा हूं वो यहां से, ये बात हो गई, ये बात भी हो गई। चलो अभी देख लेते हैं ये बात में क्या दम है। तो इस बात में दम ये है
कि ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशंस ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl विद द 250 ml 0.2 मोलर HCl। चलो देख लेना पहला कि इसमें ये पड़ोस, ये हमारी चाय है, ये हमारे पड़ोस वालों की चाय है, दोनों एक ही कंपनी की चाय है, एक ही कंपनी की चाय है, मीन्स दोनों HCl ही है। अगर एक के पास HCl है, दूसरे के पास H2SO4 है, तो बच्चों हम इस इक्वेशन से और इस मोलारिटी से नहीं कर पाते, इसके लिए हमको जाना होगा नॉर्मलिटी, वो देखेंगे। पर अभी बच्चों आपको इतना पता चल ही जाना चाहिए कि आज हमारे पास जो चाय है वही चाय हमारे पड़ोस वालों के पास भी है, तो बहुत ही मजा आएगा इसमें। तो क्या होगा, देखो 0.5 मोलर 750 ml, ये 2 मोलर 250 ml, ये दोनों को मिक्स करते हैं, नई कुछ चाय बनाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, EM3 है हमारा। सो M3 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V3। क्या हो गया भाई M1, देख लो, चलो इसको बोल देते हैं M1, इसको बोल देते हैं V1, उसको बोल देते हैं M2, इसको बोल देते हैं V2। सो व्हाट इज M1, 0.5 मोलर into 750 plus 2 molar 250 ml, is it, divided by total V3 कहां से लाएंगे भाई, 1000 हो गया ये। तो ये करीबन कुछ होता है 375 प्लस 500 divided by 1000 ml is equal to 0.875 मोलर। ठीक है, तो ये जो कुछ नई चाय बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 0.875 मोलर, और उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1000 ml। कोई ऐसा सोचते हैं कि सर हमको तो 1000 ml से तो नहीं खत्म होगा, हमको क्या करना है कि ये जो आता है ना, इसमें हम दूसरा 500 ml जो मिक्सिंग करने के बाद 500 ml वाटर भी डाल देंगे। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, ये जो जगह है वो जगह पे आपको क्या ले लेना होगा, 1500। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5, ये आपको करना है, जस्ट आई विल राइट हियर प्लस 2 into 250 डिवाइडेड बाय, देखो 1000 ml से तो इससे ही आ जाता है, इसमें हमको एक्स्ट्रा 500 ml और पानी भी डाला है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ, ये दोनों मिक्स करते हैं तो 1000 तो हो ही जाता है, और दूसरा 500, तो वो क्या होगा 1500 ml। ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वो उसकी कुछ मोलारिटी आ जाएगी। बच्चों तो ये बात थी, देखो टोटल वॉल्यूम लेना है, वो खास याद रखना, टोटल वॉल्यूम मींस कि जो भी जितना भी जुगाड़ करके डाला है वो सभी को ले लेना है। तो ये बात खत्म हो गई, चलते हैं आगे, मोलारिटी विथ डिफरेंट कोरिलेशंस। देखो अभी ये बात आ गई, मोलारिटी का उससे क्या लेना देना है, वो बात सोच लेते हैं कि भाई ये उससे क्या लेना देना होता है। तो देखो मोलारिटी को हमने दो लोगों के साथ और दो यूनिट्स के साथ कोरिलेशंस करने का तय किया हुआ है। तो एक बात हो गई W/V और दूसरी बात हो गई W/W। देख लेते हैं, पहला रिलेशंस उससे बेसिस पे रखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है, तो मोलारिटी में भी वॉल्यूम आता है, इसमें भी वॉल्यूम आता है। तो चलो देख लेते हैं, मोलारिटी M इज इक्वल टू, ऐसा कुछ हमारा इक्वेशंस था, वो भी आपको पता ही है, जस्ट आई चेंज इट, और उसको कैसे याद रखना है वो हम देखते हैं। तो देख लेते हैं कि M इज इक्वल टू, ये W ये V टोटल हो जाएगा, ये 100 यहां से मैं उठा के यहां डाल देता हूं, इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलेक्यूलर। तो क्या हो जाएगा इसमें इसकी जगह से हमें मिल जाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम,
into 10 divided by molecular weight. अभी रुको, ठीक है। अभी इसमें से ये इक्वेशंस कैसे आएगा, उसके लिए देखो बच्चों, ये और उसका रिलेशंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको डायरेक्टली मोलारिटी आए तो यही इक्वेशंस को याद रखना है, इस इक्वेशंस को याद नहीं रखना है, पर उसको कैसे जुगाड़ करना है। तो देख लो, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये हो गया। अभी हमारा जो मैंने ये बात बताई थी आपको, ये थोड़ा बहुत बोलना में यहाँ पे रह गया था, पर देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये दोनों है ना, एक वॉल्यूम के रिलेटेड है, एक मास के रिलेटेड। ये दोनों को जो कोरिलेट करता है ना, वो है डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो उसको कोरिलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये क्या हो गया कि W बाय W, ये हो गया W बाय वॉल्यूम। तो अभी जहां पे सेम अल्फाबेट है वहां पे डिस्टर्ब करना है, तो उसको भी असिमेट्रिक जैसा बना, W W सेम हो गए तो D डाल दिया, वो भी अभी मिक्सिंग हो गए। यहाँ पे तो ऑलरेडी यही, तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये W बाय वॉल्यूम की जगह पे हम क्या डाल देंगे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू D, इज इट। तो अभी ये हो गया मोलारिटी। तो हमको ऐसे दो इक्वेशंस और ऐसे इक्वेशंस भी आ सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे कुछ जुगाड़ करते हैं उसका। देखो हमारे पास दो ऐसा है, इसमें हमको पहले में फाइंड करना है मोलारिटी, दूसरे में भी कुछ फाइंड करना है, मोलारिटी की बात है। तो यहाँ पे ये जो दिया है वो 90% बाय वॉल्यूम है, देख लो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 80% बाय मास है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसमें हम इजीली मोलारिटी फाइंड कर पाएंगे, जिसमें बाय वॉल्यूम दिया है, इसमें वॉल्यूम, क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट हो गया, तो वो सभी एक ही ग्रुप में आते हैं। मोलारिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एक ही ग्रुप में आते हैं, तो वो बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे, तो m परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलेक्युलर। वेरी सिंपल इक्वेशंस हमारे पास आ गया। देखो कुछ जुगाड़ करके आप ला सकते हो, पर ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन हो, इक्वेशंस को कैसे याद रखना है उसका भी जुगाड़ मैंने आपको कर दिया है। तो ये कुछ हो गया, तो उसके बेसिस पे हमें क्या आंसर मिल जाएगा। देखो ये कुछ 90 है, 98 है, तो उसको कुछ करीबन 100 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी 100। तो यहाँ पे 100 कुछ करके डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो ये हमको कुछ मिल जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, और उसका आंसर आता है 9.18। यहाँ पे हमें जुगाड़ करना है वो परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू D इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट बच्चों, ठीक है। चलो क्या है वेट बाय वेट, 80% है। डेंसिटी कितनी है, 1.7 इनटू 10, ये कितने हैं 98। तो ये भी फिर से यही बात हो गई, ये कुछ 10 वाला बात हो जाएगा, 17 8 कुछ करके कुछ करीबन 144 जितना हो जाएगा इसको। तो उसका आंसर कुछ देखो, अगर आपको नहीं पता चलता तो देख लेते हैं भाई। 17, वो तो 1.7 ही रहने दो। 18, उसको 100 करने के लिए यहाँ पे 10 डाल देते हैं। तो ये कुछ मैंने इसको कैंसिल आउट किया है। जो भी आंसर आएगा उससे ज़्यादा ही आंसर लेना है, क्योंकि यहाँ 100 ज़्यादा है। तो 17 8 वो कुछ उसको राउंड अबाउट 18 भी ले लेते हैं, क्योंकि ये कुछ यहाँ से वो करेंगे तो सिग्निफिकेंस फिगर के अकॉर्डिंग 8 आ जाएगा, दैट इज 144 डिवाइडेड बाय 10। तो ये जो कुछ आंसर होगा वो 14.5 से तो ज्यादा ही होगा, 14.4 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो 100 था। तो 100 डिवाइडेड बाय 98 करेंगे तो क्या होगा, कुछ 1 से तो ज्यादा ही आंसर आएगा, ठीक है। मीन्स आपको ये से आंसर सिलेक्ट करना है कि जिसका आंसर 14.4 से ज्यादा हो बच्चे, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम जुगाड़ कर देंगे।